Good morning, class 5 students. Welcome back to online class. Today we will study computer. So open your computer book, page number 11, chapter number 2. Open your computer book, page number 11, chapter number 2, desktop management in Windows 10. Desktop management in Windows 10. So through this chapter we will learn about the features of Windows. We will learn about the browser, Microsoft Edge, the PDA, Cortana, and we will also learn to customize our computer desktop, etc. Okay, so students, in this chapter will be very interesting. So watch the video very attentively and carefully. Okay students, गुड मॉर्निंग क्लास 5 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो क्लास में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर। अपनी कंप्यूटर की बुक खोलिए और उसमें पेज नंबर 11 चैप्टर नंबर 2 डेस्कटॉप मैनेजमेंट इन विंडोज 10 ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे फीचर्स ऑफ विंडोज के बारे में। विंडोज के क्या क्या फीचर्स हैं उसको सीखेंगे। साथ ही साथ सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज जो कि ब्राउजर है, और फिर हम लोग पीडीए के बारे में सीखेंगे, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, कोर्टाना के बारे में, और हम लोग कुछ कंप्यूटर के डेस्कटॉप को कस्टमाइज करना भी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। वैसे ये वीडियो आज की जो क्लास है, मतलब ये जो चैप्टर है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही प्रैक्टिकल होने वाला है। आप बहुत सारी चीजों को अपने कंप्यूटर्स में करने सकेंगे खुद से। आपको बहुत अटेंटिवली इस वीडियो को देखना है, बड़े ध्यान से, बड़े मन से इस वीडियो को देखना है और सारी चीजों को सीखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो क्लास को। Okay, now students, what you'll do, I'm just reading this chapter. हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। एंड what you will do, आप लोग क्या करेंगे, you will just repeat after me so that you can pronounce correctly. Okay, so I'm just reading this chapter and you all will repeat after me. मेरे पीछे पीछे आप लोग सभी लोग बोलेंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। Now, desktop management in Windows 10. Desktop management in Windows 10. Repeat after me. Microsoft Windows is a graphical user interface, GUI based operating system. It provides you with various options and features to use computer in a better and efficient way. The latest version of Microsoft Windows is Windows 10. Windows 10 is easier to manage and more secure than conventional Windows version. It can run on desktop computers, laptop as well as tablets. Windows 10 is released with many useful and interesting features. Features of Windows 10. Let us learn some interesting and useful features of Windows 10. Attractive user interface. It has very attractive user interface and consists of many colorful themes. Turn to next page पे चलेंगे। Multiple desktop feature. A new multiple desktop features let us run another set of windows as if on another screen, but without the physical monitor. Inside of having multiple windows open
on top of each other on one desktop. We can set up a whole other virtual desktop for those programs to reside in. Tablet mode of Start menu. Windows 10 Start menu binds elements of its Windows 7 predecessor with Windows 10 Live Tiles interface. The Start menu design contains some familiar elements, including links to common location, a list of frequently used apps and programs, and power controls. A separate option called tablet mode also expands the start screen and is specially designed to make Windows 10 more usable on tablet and hybrid PCs. Next page. Microsoft Edge. Microsoft Edge is default browser of Windows 10 that has replaced Internet Explorer in the older version of Windows. It is faster, more secure, and has a lot of new features. It is designed to be a lightweight web browser with a layout engine built around web standards. Cortana. Cortana is the personal digital assistant in Windows 10 whom we can talk to or ask questions from, like when the FIFA World Cup 2018, or search for a particular application on the computer or on the internet. We can ask anything from Cortana and it will provide the answer accordingly. We can directly type questions in the search box next to Start button on the taskbar. Okay students, today we will finish till page number 13. आज हम लोग पेज नंबर 13 तक ही फिनिश करेंगे. So in the next class we will read the rest of the part. Okay, अगली क्लास में हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को पढ़ेंगे. So I am going to explain this. अब हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है. So be attentive रहिए और सुनिए और सारी चीजों को देखिए. Microsoft Windows is graphical user interface GUI based operating system. देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है वो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो ये GUI बेस्ड क्या होता है? GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये है कि वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सारी चीजें हो, जैसे कि बटन्स हो, स्क्रीन पे बहुत सारी चीजें दिखती हो. तो क्या ऐसा भी कुछ है जो GUI नहीं होता हो? यस, ऐसा होता था पहले, आज भी है. बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे भी हैं जो GUI बेस्ड नहीं है, जो CLI बेस्ड हैं. CLI क्या होता है? CLI होता है कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें क्या है, एक ब्लैक स्क्रीन होती है और उसमें आपको कुछ भी काम करना है, जैसे गाना ही बजाना है तो आपको बटन दबा करके नहीं बजाना होगा, आपको कमांड लिख के बजाना होगा. आपको प्ले सॉन्ग का नेम इंटर दबाएंगे तब जाके गाना प्ले होगा, मतलब कमांड के थ्रू होगा. ठीक है, ऐसे ग्राफिकली बटन दबा करके, डबल क्लिक करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके ये सारे फीचर्स नहीं होंगे. सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ने क्या किया, अपना ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया जो कि हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ये आसान था. इट प्रोवाइड्स यू द वेरियस ऑप्शन फीचर्स टू यूज कंप्यूटर इन अ बेटर एंड एफिशिएंट वे. और ये हमें मदद करता है बहुत सारे कंप्यूटर फीचर्स को इस्तेमाल करने के लिए एक अच्छे तरीके से, मतलब इफिशिएंट वे में इस्तेमाल करने के लिए.
क्या होता था पहले? पहले आपको सारे कमांड्स याद करने होते थे। सारे कमांड, जैसे कि आपको अगर गाना बजाना है तो आपको याद रखना होगा कि आपको क्या टाइप करना है। PLAY ही टाइप करना है। PLY टाइप कर दीजिएगा तो गाना बजेगा ही। तो कमांड भी एक्यूरेटली टाइप करना है और क्या टाइप करना है ये आपको याद करना होगा और बहुत सारी चीजें याद करनी होंगी। तो ये टफ था, मुश्किल था। अब क्या है कि कुछ भी याद करना नहीं है, बस जिसको जिसको चलाना है उस पर टच कर दीजिए या फिर उस पर क्लिक कर दीजिए तो काम खत्म हो जाता है, मतलब काम हो जाता है। लेकिन पहले मुश्किल था। तो GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फायदा है। The latest version of Windows, Microsoft Windows, Windows 10 is easier to manage and more secure and convenient conventional Windows version. देखिए, Windows 10 जो है ये लेटेस्ट वर्जन है। एक्चुअली Windows 11 आ गया है और 11 के बाद उसी को अपडेट किया जाएगा ऑलवेज। तो ये उसमें बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है, बहुत सारे नए फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये पुराने जो कन्वेंशनल विंडोज वर्जन थे उनसे बेटर है, उसमें से बहुत सारे फीचर्स नए ऐड किए हैं। इट कैन रन ऑन डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप एज वेल एज टैबलेट। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10, यहाँ जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये विंडोज 10 के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग विंडोज 10 पर ही बात करेंगे। जनरली ज्यादातर कंप्यूटर्स लोगों के पास में है, उसमें विंडोज 10 ही है। तो हम लोग विंडोज 10 को ही देखते हैं। तो विंडोज 10 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे ये जो है ये सारा फीचर्स दिख रहा है, ये विंडोज 10 का फीचर है। तो विंडोज 10 इज रिलीज्ड विथ मैनी यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग फीचर्स। और विंडोज 10 का ये खास बात है कि ये कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट तीनों पे चल सकता है, किसी भी हो, या टैबलेट हो या लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, तीनों पे आराम से चल जाएगा। और ये रिलीज किया गया बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ, जिसको हम बहुत अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे। सो फीचर्स ऑफ विंडोज 10 क्या है? फीचर्स, लेट अस लर्न सम इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल फीचर्स ऑफ विंडोज 10। चलिए हम लोग देखते हैं विंडोज 10 के यूजफुल फीचर्स। अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस। देखो, हम यूजर इंटरफेस मस्त हो तो हम लोग को मजा आता है। यूजर इंटरफेस क्या है? जो भी चीजें स्क्रीन पर दिखती हैं प्रॉपरली अरेंज्ड हो, सब कुछ सेटिंग से हो, बटन का एरिया अलग हो, सारी चीजें फिक्स्ड हो, तो अच्छे से हम लोग काम कर पाते हैं। लेकिन वही है कि इधर उधर एक बटन यहाँ, एक बटन वहां, एक बटन इधर, एक बटन इधर, तो वैसा ठीक नहीं होगा। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें सारी चीजें बहुत अच्छे से अरेंज्ड हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस बनाया गया है और सारी चीजों के लिए अलग अलग चीजें रखी गई हैं। इट हैज मैनी अट्रैक्टिव यूजर इंटरफेस एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी कलरफुल थीम्स। और इसमें कलरफुल थीम्स भी हैं, मतलब सब कुछ एक थीम पे क्लिक कीजिए और सारा चीज एक बार से चेंज। ओके, सो नेक्स्ट देखेंगे मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर। देखिए इसमें मल्टीपल डेस्कटॉप का फीचर है, मतलब कि मान लीजिए आपको 3 स्क्रीन लगानी है। मान लीजिए आपको 3 स्क्रीन है आपके पास और आप मतलब ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो दो दो एप्लीकेशन में एक साथ करनी है, मतलब उसमें से देखना है और इसमें करना है। तो क्या करना होगा? एक एप्लीकेशन को खोलिएगा, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे काम कीजिएगा, फिर एक एप्लीकेशन को खोलिएगा, फिर दूसरे एप्लीकेशन पे काम कीजिएगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। तो क्या करेंगे आप? कंप्यूटर में 3 स्क्रीन कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरे डेस्कटॉप पे उस एप्लीकेशन को खोलिए, राइट से इधर देखिए, लेफ्ट से इस कंप्यूटर पे देखिए। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये एक ही स्क्रीन पे करके दिखाया जा रहा है, लेकिन आप इसको 3 अलग अलग मॉनिटर पे जोड़ सकते हैं और फिर अलग अलग को यूज कर सकते हैं तीनों। जैसे गेमर्स वगैरह होते हैं तो वो लोग जो क्या करते हैं कि दो स्क्रीन लगा लेते हैं या 3 स्क्रीन लगा लेते हैं और फिर एक में वो सारे चैट्स वगैरह जो लोग बोल रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, वो पढ़ते हैं, दूसरे में अपने गेम खेलते हैं और तीसरे में वो सारा इंफॉर्मेशन लेके रखते हैं कि कौन कितना पैसा भेज रहा है, कौन क्या हुआ है, मेरा कंप्यूटर कितना स्पीड चल रहा है, समथिंग समथिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे रखते हैं। तो 3 स्क्रीन लगा करके गेम खेलते हैं जो गेमर्स होते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए आपको किसी फोटो आपको किसी ने खींच के भेजा है और उसमें बोला है कि उसमें जो फोटो में जो भी चीज लिखी हुई है उसको आप कंप्यूटर में टाइप करके भेज दीजिए। तो आपको क्या करना होगा? या तो आप उसको मोबाइल में देख देख के लिखना होगा, या फिर आप कंप्यूटर पे 2 स्क्रीन लगा लेंगे और एक में वो फोटो खोल के रखेंगे और एक में वो टाइप करने के लिए वर्ड खोल के रखेंगे और फिर वहां टाइप कर लेंगे। तो इस टाइप से काम होता है, ठीक है। So a new multiple desktop feature, let's learn another set of windows as if
ऑन अनदर स्क्रीन। देखो यहाँ पे एक और ये जो बात बताई जा रही है, ये मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर्स है, मतलब एक ही कंप्यूटर पे आप तीन स्क्रीन बना सकते हैं। आप एक ही स्क्रीन में, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्क्रीन भर गई है, आप यही चीज को दूसरे स्क्रीन पे ले जाना चाहते हैं या दूसरा काम करना चाहते हैं दूसरे स्क्रीन पर, दूसरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर, तो इसके लिए आप ये मल्टीपल डेस्कटॉप फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट विदाउट द फिजिकल मॉनिटर, बिना फिजिकल मॉनिटर के भी आप 3 स्क्रीन बना सकते हैं। बस आप एक बटन पे क्लिक करेंगे तो वो वाली फर्स्ट स्क्रीन आ जाएगी, एक बटन पे क्लिक करेंगे तो सेकंड स्क्रीन आ जाएगी, एक बटन पे क्लिक करेंगे तो थर्ड स्क्रीन आ जाएगी, कुछ इस प्रकार। Inside having the multiple windows open on the top of each other on one desktop, और अगर जैसे अभी क्या होता है, एक के पीछे एक खोलना पड़ता है। जैसे हम ये पावर पॉइंट खोल के रखे हैं, इसके पीछे में वर्ड खोल के रखे हैं, और आप लोग के लिए वीडियोस अपलोड करने के लिए यूट्यूब खोल के रखे हैं, तो हम सब चीज एक ही में खोल के रखे हैं। जब हम इसको मिनिमाइज करेंगे, इसको छोटा करेंगे, इसको डाउन करेंगे, तब जाके हम अगला फीचर पे अगला एप्लीकेशन पे जा पाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग एक साइड में, मतलब एक बटन होता है जिसके द्वारा पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप्स के ऑप्शंस को चेंज कर पाएंगे। ये सारी चीजें हम प्रैक्टिकल क्लास में करेंगे। जैसे हम वीडियो क्लास में प्रैक्टिकल आप लोग को बता देंगे कि कैसे हम अलग अलग डेस्कटॉप सेट कर सकते हैं। फिलहाल बस समझिए कि ये डेस्कटॉप फीचर्स क्या है। ठीक है, तो हम एक में YouTube खोल लेते, एक में हम एक्सेल खोल लेते, एक में वर्ड खोल लेते और सारी चीजें कर पाते। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम वैसा नहीं कर रहे फिलहाल। सो Windows open on the top of each other, we can set up whole other virtual desktop for those program to reside in। तो हम लोग वैसे ही whole other desktop सेट कर सकते हैं, जो एप्लीकेशन डायरेक्टली रन कर रही हैं, अभी एक साथ तीनों चीजें रन कर रही हैं, उसको सेट करने के लिए। नाउ टैबलेट मोड ऑफ स्टार्ट मेनू। अब टैबलेट मोड क्या है? देखिए टैबलेट मोड क्या है कि स्क्रीन पर पूरा बॉक्स आए और आप टच करिए। टैबलेट मोड जनरली टच स्क्रीन वाले कंप्यूटर्स के लिए आता है और जिसमें आप टच करके ही एप्लीकेशंस को खोल पाए। Windows 10 स्टार्ट मेनू ब्लेंड्स एलिमेंट ऑफ इट्स Windows 7 प्रीडिसेसर विद द Windows 8 लाइव टाइल्स इंटरफेस। देखिए Windows 10 में क्या किया है कि Windows 8 जैसा फीचर्स को ऐड किया गया है। Windows 8 में ऐसे टाइल्स वाले फीचर्स थे, देखिए यहाँ नीचे में कुछ भी खोलना हो तो ऐसा टाइल्स में थे, आप स्क्रॉल अप कीजिए और बटन दबा दीजिए जो चीज आपको खोलनी है। तो ऐसे ऑप्शन करके अलग अलग सेट किया गया। जैसे मान लीजिए कि अगर इंटरनेट से रिलेटेड चीजों को खोलना है तो वो अलग टाइल्स सेट में मिलेगी। अगर गेम से रिलेटेड गेम्स खोलने हैं तो गेम्स आपके कंप्यूटर में ढेर सारे हैं, तो सारे गेम्स एक ही जगह पे होंगे, बस आपको स्क्रॉल अप करेंगे और गेम्स आपको क्लिक हो। जैसे ये माइनक्राफ्ट मिल रहा है, यहाँ पे देखिए गेम मिल रहा है, और भी पता नहीं ये गेम नहीं है। तो ऐसे सारे एक ही जगह आसपास पे होंगे, आप इसको बस तुरंत से खोल पाएंगे और वन क्लिक पर। ठीक है, The start menu design contains some similar element including link to common location। देखिए स्टार्ट मेनू सेम टू सेम है, जैसा पहले विंडोज 7 में था वैसे ही विंडोज 10 में है, सब कुछ सेम है ताकि इजीली हम लोग यूज कर पाए। इंक्लूड द लिस्ट ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज ऐप। यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा भी ऑप्शन दिया गया है जो चीज आप बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो फ्रिक्वेंटली यूज ऐप का एक लिस्ट बना दिया गया है, वहां से आप डायरेक्टली खोल सकते हैं। स्पेशली जाके जैसे हम लोग वर्ड खोलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ड में जाते हैं, पहले स्टार्ट मेनू जाते हैं, फिर उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं या ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाते हैं, फिर उसके बाद वहां पे वर्ड खोलते हैं। ठीक है, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उसके लिए एक अलग सा टाइल सेट होगा जहां पे फ्रीक्वेंटली यूज एप्लीकेशंस होंगी। बस आप उसको जैसे ये स्टार्ट मेनू खोलेंगे वहां पे दिख जाएगा, आप वहीं से डायरेक्टली खोल पाएंगे। तो ठीक है, आप जो भी एप्लीकेशन बार बार खोलते हो तो उसकी टाइल्स वहां सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं। फिर प्रोग्राम पावर कंट्रोल है, सारा पावर्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। पावर इन द सेंस आपके कंप्यूटर पे कौन सी पावर, मतलब कि लैपटॉप जो है या टैबलेट जो है उसकी पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। इफिशिएंट वे में चलाना है, फास्ट स्पीड में चलाना है, फुल पेज में चलाना है, लाइक दैट। ए सेपरेट ऑप्शन कॉल्ड टैबलेट मोड, और एक सेपरेट ऑप्शन मिलता है जिसको टैबलेट मोड बोलते हैं, इज एक्सपेंड द स्टार्ट स्क्रीन एंड स्पेशली डिजाइन टू मेक विंडोज 10 मोर यूजेबल ऑन टैबलेट और हाइब्रिड पीसी।
और इसमें स्पेशल फीचर्स मिलता है जिस पे क्लिक करके आप टैबलेट मोड पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पूरी टैबलेट वाली स्टेप में आ जाएगी और उसमें टाइल्स सेट होंगे और उस पर क्लिक करने पर सब काम होगा। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोसॉफ्ट एज। देखो ये चीज आज हम सिर्फ डिफाइन कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम आपको दिखा के बताएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज है क्या। देखिए ब्राउजर है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउजर है विंडोज 10 का। हाँ, ये डिफॉल्ट ब्राउजर है, मतलब ये आपके साथ मिलेगा जैसे ही आप विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे तो ये उसके साथ में आएगा। आपको क्या करना है, मतलब जैसे पहले क्या होता था, पहले विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर नाम का एक एप्लीकेशन होती थी जो ब्राउज करने के लिए काम आती थी, लेकिन वो थोड़ी सिक्योर नहीं थी। तो विंडोज ने क्या किया, अब नया फीचर दिया जिसमें क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एज नाम का ये है एप्लीकेशन है, ये ब्राउजर है और इसमें ये लाइट वेट वेब ब्राउजर है और ये मतलब जो भी इंटरनेट पे जो भी चीजें चाहिए आसानी से वहां पे, मतलब फीचर जिस तरीके से विंडोज में था ना कि टाइल्स वाला सिस्टम, सारे फ्रिक्वेंटली यूज वाले एप्लीकेशन, वो सारी कुछ यहाँ पे भी मिल जाएंगे आपको। जिस वेबसाइट को आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं वो ऊपर में दिखने लग जाएंगे, बस वहीं से डायरेक्टली क्लिक कर लेंगे आप डायरेक्ट। अब बार बार आपको टाइप नहीं करना होगा www.youtube.com लाइक दैट। सारे यहाँ पे आपको मिल जाएंगे आपको सारे ऐसे, या टाइल्स के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। आप जैसा डिजाइन आप उसका लेआउट जैसा भी सेट करना चाहो आप सेट कर सकते हो। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है ज्यादा सिक्योर है। ठीक है, और इसको अब तो अभी जो हम बोल रहे हैं, अभी माइक्रोसॉफ्ट एज को ये चैट जीपीटी के साथ में इंक्लूड कर दिया गया है, मतलब उसमें अब एआई भी फिट हो गया है। अब उससे आप कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, आप वर्ड में चाहिए, पिक्चर्स फॉर्म में चाहिए, वीडियोस फॉर्म में चाहिए, वो एआई आपको रिपीट करके वो वीडियोस के फॉर्म में या वर्ड फॉर्म में आपको दे सकता है। तो एज में ये फीचर भी ऐड कर दिया गया है। नाउ नेक्स्ट इज कोटाना। कोटाना क्या है, कोटाना एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। अगर आपने वो जारविश वाली मूवी देखी होगी, जिसमें कोई आयरन मैन मूवीज में वो उसके पास एक जारविस नाम का एक कंप्यूटर था और वो क्या, जैसे ही घर आता था फिर जारविस उसको वेलकम करती थी और फिर वो उससे कुछ भी पूछ सकता था, बताओ तो आज की डेट कौन सी है, बताओ तो आज का टेम्परेचर क्या है। तो ऐसे ही, या फिर नॉर्मली उससे बात कर सकते हैं जैसे दोस्त से बात करते हैं। तो कोटाना भी एक तरीके से आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है और इससे आप कुछ भी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं या कुछ भी उससे बात करना चाहें तो नॉर्मली बात भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फीचर भी विंडोज 10 में आ गया है कोटाना, और आप उससे कुछ भी करवा भी सकते हैं, जैसे कि लाइट बंद कर दो, जैसे जारविश जो आयरन मैन में था, वो लाइट ऑन करो तो पंखा ऑन करो, एसी ऑन करो, ये सारी चीजें वो करवा सकता था। इवन दो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे ही कोटाना लाइट तो ऑन नहीं करेगा, लेकिन उससे आप जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड गाना प्ले कर दो, ये वाला गाना खोज के प्ले करो, ये सारी चीजें आप करवा सकते हैं। मतलब यूट्यूब पे बैठ कोटाना ऑन करके नेक्स्ट वीडियो बनाइए, नेक्स्ट वीडियो लगाइए, ऐसा करके बोल सकते हैं कुछ भी। आप ये एप्लीकेशन खोलिए, कॉल लगाइए, लाइक दैट, ये सारी इंफॉर्मेशन आप कोटाना को बोल करके कर सकते हैं। ठीक है, तो वी कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम कोटाना, इट विल प्रोवाइड द आंसर अकॉर्डिंगली, और हम कुछ भी पूछ सकते हैं उससे और ये हमें अकॉर्डिंगली आंसर करेगा। जैसे कुछ क्वेश्चन हम पूछें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हेन द वर्ल्ड फीफा वर्ल्ड कप 2018, अगर आप ये पूछते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2018 कब शुरू होगा, कौन सी तारीख को शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको बता के बोल के बताएगा, लिख के नहीं, बोल के बताएगा। ठीक है, तो कोटाना का ये फीचर है। और या फिर आप सर्च बॉक्स में जिस तरीके से आप क्वेश्चन टाइप करके भी उससे पूछ सकते हैं या मुंह से बोल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये सारा फीचर्स कोटाना में है। इस सब चीजों को हम लोग करके देखेंगे, सो डोंट वरी, अभी सिर्फ समझिए कि इनके फीचर्स क्या क्या है। ठीक है, ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास, यहां तक तो खत्म हो गया। आज की क्लास में हम लोग इतना ही दूर तक पढ़े थे, यहां तक पढ़े थे, तो यहां तक खत्म कर दिए कोटाना तक। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे डेस्कटॉप, कस्टमाइजिंग डेस्कटॉप को कैसे कस्टमाइज करना है, उसके स्क्रीन सेवर्स को कैसे सेट करना है, आइकन्स कैसे सेट करना है, इसके शॉर्टकट मेन्यूज कैसे बनाने हैं, टास्क बार क्या है, नोटिफिकेशन और क्विक लॉन्च एरिया क्या है, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, सो आज की वीडियो इतना ही, काफी लंबी वीडियो हो गई, 24 मिनट्स की। ठीक है,
मतलब 25-26 मिनट हो ही जाएगा। सो आप अगर ठीक से समझ में नहीं आया है तो वीडियोस को रिपीट करके, पॉज करके फिर से देखिए, रिपीट कर करके, ठीक है। ओके, आप लोग के लिए होमवर्क ये रहेगा कि आप टिक द करेक्ट ऑप्शन, इस टिक द करेक्ट ऑप्शन को, वैसे तो सारा चैप्टर नहीं पढ़े हैं लेकिन आप अपनी बुक से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि इट इज द डिफॉल्ट ब्राउजर ऑफ विंडोज 10, अभी हम लोगों ने पढ़ा डिफॉल्ट ब्राउजर कौन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज या मोजिला, कौन है, माइक्रोसॉफ्ट एज, तो इस पर टिक लगाएंगे। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को आप अपने बुक में ही सर्च करके, मतलब बुक से सर्च करके बुक में ही लिखेंगे, ठीक है, बुक से सर्च करके बुक में ही लिखेंगे और क्लिक करके मुझे भेजेंगे। आप लोग होमवर्क क्लिक करके नहीं भेज रहे हो, ठीक है, आपको पता है ना 5 मार्क्स का होमवर्क वाला चार्ट बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ था जिसमें आपको 5 मार्क्स रिड्यूस हो रहे थे और ये रिड्यूस होते हुए 100 मार्क्स तक रिड्यूस होगा, दैट मीन्स आपको 0 अंडा आएगा उसमें। सो आपको भी फोटोज भेजनी है होमवर्क में, अगर नहीं भेज रहे हो हम यहाँ पे आपको अटेंडेंस आपका माइनस में रखेंगे, ठीक है। ओके, बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि होमवर्क को भेजना है, क्योंकि ये चीज आपको शुरू से ही आपको बता दिया गया है कि होमवर्क अगर नहीं भेजोगे तो -1 मार्क्स कटते चला जाएगा और फिर फाइनली 100 मार्क्स आपसे हाथ धो बैठोगे आप 100 मार्क्स से। ओके, सो ध्यान से भेजिए सारे होमवर्क्स को। ओके, दिस इज फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, सो कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड बी सेफ, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।